Ajay. So the first question starts off with animal cells, plant cells, and prokaryotic cells have similarities and differences in their structure. Table 1.1 lists five organelles found in cells. Complete Table 1.1 by placing a tick to show whether the organelle is present in animal cells, plant cells, and prokaryotic cells, or a cross if the organelle is absent. Put a tick or cross in every box. The first row has been completed for you. So we have to complete each and every box of this particular table. A large permanent vacuole is not present in animal cells. It is present in plant cells and it is not present in prokaryotic cells. When you talk about RER, RER is present in animal cells and plant cells. However, RER is absent in prokaryotic cells because no membrane-bound organelle is found in prokaryotic cells. Similarly, Golgi body is present in both animal and plant cells, but since it is a membrane-bound organelle, it would be absent in prokaryotic cells. When we talk about centrioles, centrioles are only found in animal cells, whereas they are absent in plant cells and prokaryotic cells. Achha. Figure 1.1 shows a section through part of an epithelial cell found in the digestive system of an animal. The cell is specialized for absorption of digested food. The structures labeled P and Q in figure 1.1 are involved in the absorption of digested food. Part 1 says name the structures labeled P. Now हमारे पास basically जो membrane है हमें उसकी क्या नजर आ रही है हमें उसकी folding नजर आ रही है अच्छा Now हमारे पास क्या कहते हैं this is not cilia affair, this is actually microvilli. Microvilli is also part of your syllabus. Cell structure वाला जो chapter है उसमें जो organelle है that's microvilli. तो हमारे पास क्या कहते हैं microvilli जो है that is found in the epithelial cells in the digestive system and O levels में आप लोग digestive system पढ़ते भी हो तो क्या कहते हैं हमारे पास जो microvilli है they play an important role in the absorption of food. अच्छा जी so ये हमारे पास क्या होगा this would be microvilli. Explain how the organelle labeled Q in figure 1.1 is involved in this process. Now, what is Q? Which organelle looks like this? Very good. This is the mitochondria. Now, the question is asking us explain how the organelle labeled Q in figure 1.1 is involved in this process. हमने identify कर लिया mitochondria. अच्छा, mitochondria की identification हमने नहीं मांगी है इस question में. बट ऑब्वियसली जब तक हम ऑर्गेनील को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम उसका क्या कहते हैं किस तरह से इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस में हम वो फिगर आउट नहीं कर पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का हमें रूल पता है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में इट बेसिकली सिंथेसाइजेस एटीपी सो एटीपी सिंथेसिस इज द रोल of mitochondria. Now, how do we relate this to be So simply figure 1.1 shows a section through part of an epithelial cell found in the digestive system of an animal. This cell is specialized for absorption of digested food. And ये दोनों organelles जो है वो क्या कर रहे हैं? They are involved in the absorption of digested food. तो हमारे पास कोई भी चीज अगर lumen of the gut से अंदर आ रही है तो डेफिनेटली वो किसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू आ रही होगी either it would be simple diffusion, facilitated diffusion or active transport. हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया कौन से ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो अब एक्टिव प्रोसेसेस में हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट आ जाता है जिसमें हमारे पास फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस आता है या फिर हमारे पास जो सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हमारा क्या कहते हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट वाली चीज मूव कर रही होती है उसके लिए हमें एटीपी चाहिए होता है सो एक्टिव प्रोसेसेस जो हैं या एक्टिव मेथडोलॉजीज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है सो वी वुड सिंपली से one thing we would tell what role is mitochondria playing so we would say that Q is responsible for ATP synthesis via aerobic respiration. This ATP is utilized in actively transporting
digested food in the epithelial cells. Next question, question 2, part A. In the mammalian circulatory system, red blood cells travel through different types of blood vessels as they pass from the heart to respiring tissues and back to the heart. Figure 2.1 shows the types of blood vessels through which red blood cells travel in the circulatory system. Complete figure 2.1 by writing the names of the missing types of blood vessels through which red blood cells travel. Probably हमारे 4 to 5 questions हो जाएंगे in today's class. I'm at least aiming कि हम 4 questions complete कर लें. So yes, this would be the RTUs and these would be the venues. Okay. Water is the main component of blood. It has an important role in the transport of substances around the body. Figure 2.2 shows the ionic compound sodium chloride dissolving in water. With reference to figure 2.2, explain how water acts as a solvent for sodium chloride. अगर हमें figure नहीं भी दी होती और खाली ये question आ जाता that explain how water acts as a solvent for ionic compounds, इसका एक standard answer ये होता है कि हम सबसे पहले बात करेंगे that how water is a polar compound. Because वो polar होता है, उसके पास partial positive, partial negative charges होते हैं. Those partial positive hydrogens would attract the anions of the ionic compound और हमारे पास जो partially negative oxygen है वो attract करेगी cations of the ionic compounds. So we would simply say water is a polar compound as it has partially positive hydrogen and partially negative oxygen. The partially positive hydrogen attracts the negatively charged chloride ions, as the partially negative oxygen attracts the positively charged sodium ions. ये actually जो मैंने second point लिखा है, these are actually 2 marking points together. Hydrogen की attraction towards chloride ions is 1 mark and oxygen's attraction towards sodium ions is another mark. So मैंने collectively ही एक sentence में दोनों marking points mention कर दिया. अच्छा जी. Okay. Figure 2.3 shows a Galapagos penguin, something, swimming in the water. Penguins are birds that live on land but spend a lot of time swimming underwater hunting for food. Penguins can remain underwater for up to 20 minutes. During this time, they do not breathe, but their tissues continue to respire. Hemoglobin in the red blood cells of penguins has a higher affinity for oxygen than hemoglobin in other birds that do not swim underwater. So this is an important statement that they've told us about penguins. Figure 2.4 shows the oxygen dissociation curve for a bird that does not swim underwater. So comparatively, ये जो bird होगी जिसका अभी हम graph देखेंगे oxygen dissociation का, it has less affinity towards oxygen in comparison to the penguin's hemoglobin. ठीक है? Draw a line on figure 2.4 to suggest the position of the oxygen dissociation curve for a penguin hemoglobin. अच्छा जी. Yes, penguins are birds. जैसे हमारे पास bats को birds नहीं mammals समझा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो penguin है वो भी एक bird consider की जाती है. Okay, Satija, I'll कहते हैं explain that. Yes, Hashim. कोई question था आपने miss लिखा था? Yes, you can totally say, Neil, that it's because there is an unequal distribution of charges. लेकिन आप ये जरूर मेंशन करना कि कौन सा वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन पे कौन सा वाले चार्जेस ज्यादा होंगे और क्या कहते हैं उस पे ऑक्सीजन पे कौन से वाले चार्जेस ज्यादा होंगे. तो अगर आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो फेयर इनफ, बट जस्ट मेंशन के कौन से वाले पे
कौन सा ज्यादा चार्ज अक्यूमुलेट होगा, बिकॉज उसी के थ्रू फिर आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाइड्रोजन से नेगेटिवली चार्ज जो एनायन है वो अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी से फिर हमारे पास नेगेटिव चीज अट्रैक्ट होगी। आफ्टर दे बोथ आर अट्रैक्टेड, तो हमारे पास तभी तो सॉल्व हो पाता है, तो सॉरी क्या कहते हैं, डिसॉल्व हो पाता है, क्योंकि अगर हमारे पास अट्रैक्शन नहीं होगी ना हाशिम, तो हमारे पास रिपल्जन होगी। अगर रिपल्जन होगी तो हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी सॉल्युबल चीज फिर सॉल्युबल नहीं रहेगी। फॉर समथिंग टू बी सॉल्युबल इन वाटर इट शुड फॉर्म अट्रैक्टिव फोर्सेस विद वाटर। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाटर के साथ फॉर्म होना एक कॉम्पाउंड की जरूरी है उसके डिसॉल्व होने के लिए। अगर क्लोरीन और क्या कहते हैं सोडियम वाटर में रिपेल हो रहा होगा, तो हमारे पास वाटर उसको डिसॉल्व ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रियल लाइफ में भी देखा हो कि अगर हम ऑयल और वाटर को मिलाएं, ऑयल कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ऑयल है उस जो जिस कॉम्पाउंड इन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, वो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ अट्रैक्शन डेवलप नहीं कर पाते, और वो अट्रैक्शन जब डेवलप नहीं कर पाते तो ऑयल घुल नहीं पाता वाटर में। तो कोई भी चीज अगर वाटर में सॉल्यूबल है तो वो वाटर के साथ अट्रैक्ट करनी चाहिए। डज दिस नाउ मेक सेंस? अट्रैक्शन होगी तो सॉल्यूबल होगा, अट्रैक्शन नहीं होगी सॉल्यूबल नहीं होगा। Yes, miss. Thank you. अच्छा, एक और शायद क्वेश्चन था, लेट मी रीड दैट। अच्छा, आई थिंक सो आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा जी, हमारे पास पेंगुइन की अफिनिटी ज्यादा है। Hemoglobin's affinity towards oxygen is greater in penguin in comparison to the bird जिसका डिसोसिएशन कर्व बनाया हुआ है। हमारे पास जब भी अफिनिटी ज्यादा होती है तो लेफ्ट शिफ्ट आता है कि राइट शिफ्ट आता है? करेक्ट नील। ओके, तो बता, यू कैन टेक अ ब्रेक, नो वरीज, मैं आपको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी आफ्टर द क्लास, आप आराम से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, नो वरीज। अच्छा देखो, ये ना काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है बात राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट वाली, कि किस केस में राइट शिफ्ट आता है और लेफ्ट शिफ्ट आता है। आई एम गोना एक्सप्लेन दैट फ्रॉम द स्क्रैच, सो फॉर एनीबॉडी हु हैज कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस, वो चीज आज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं दो कर्व्स बना रही हूँ, मैं राइट शिफ्ट का भी कर्व बना रही हूँ और मैं लेफ्ट शिफ्ट का भी कर्व बना रही हूँ, और आप लोग मुझे बताओगे कि दोनों केसेस में हो क्या रहा है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैंने ड्रॉ कर दिया राइट शिफ्ट का कर्व, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ग्राफ जो है वो टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो रहा है। और ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया लेफ्ट शिफ्ट का। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, मैं एक पार्शियल प्रेशर चूज करती हूँ, लेट्स से, क्या कहते हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा इसका हाँ, हम्म, कौन सा पार्शियल प्रेशर चूज करें? लेट्स चूज पार्शियल प्रेशर नंबर 4 चूज कर लेते हैं, चलो 4 चूज कर लेते हैं। अब 4 पे ना हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन देखते हैं, 4 पे तीनों। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी, तो राइट शिफ्ट वाले ग्राफ की आ रही है 9%, ठीक है। अगर हम बात करें जो ये ग्राफ उन्होंने हमें ड्रॉ करके दिया है, उसकी आ रही है 14%। और सिमिलरली अगर जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है लेफ्ट शिफ्ट वाला, उसकी आ रही है 1 2 3, 43%। क्या कहते हैं, जो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 4 किलो पास्कल्स है। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन हमें कौन सा ग्राफ दे रहा है? लाइट राइट शिफ्ट वाला, लेफ्ट शिफ्ट वाला, या फिर जो उन्होंने ड्रॉ करके हमें नॉर्मल दिया हुआ है अभी, रेड वाला या लेफ्ट शिफ्ट वाला दे रहा है? जब भी हमारे पास अफिनिटी ज्यादा होगी, तो अफिनिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज कम भी है, लो पार्शियल प्रेशर है, या अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंजाइम की भी बात करें, तो अगर कम सबस्ट्रेट है, तो अगर कम चीज में भी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो रही है, रेडिली एसोसिएशन हो रही है, ज्यादा एसोसिएशन हो रही है, इफ द थिंग दैट वी आर एसोसिएटिंग विद इज लेस, दैट शोज कि अफिनिटी ज्यादा है। अगर आप कम चीज में भी ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहे हो तो अफिनिटी ज्यादा है, और अगर आप कम चीज में कम अट्रैक्शन या कम एसोसिएशन शो कर रहे हो, तो आपके पास क्या कहते हैं, अफिनिटी कम है। नहीं चलता, देखो, ब्लू वाला हैज हाई एसोसिएशन, हाई अफिनिटी नहीं। अगर ब्लू वाले की हाई अफिनिटी होती तो 4 किलो पास्कल्स पे सबसे ज्यादा बॉन्डिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ब्लू वाला दिखा रहा है ना।
4 पे अगर आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा परसेंटेज सैचुरेशन कौन से वाले ग्राफ की है? विच ग्राफ शोज सबसे ज्यादा परसेंटेज सैचुरेशन 4 पे? रेड वाला शो कर रहा है, और सबसे कम कौन सा शो कर रहा है? ब्लू वाला। तो 4 किलो पास्कल्स पे सबसे ज्यादा जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज सैचुरेशन एग्जिबिट कर रहा होगा उसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी होगी, क्योंकि वो 4 पे 43% ऑफ द हीमोग्लोबिन बना रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी द ब्लू वन इज ओनली मेकिंग 9%। तो इन वैल्यू से हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं? दैट दिस वन हैज हाई एफिनिटी, दिस वन हैज लो एफिनिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है हाई अफिनिटी, राइट शिफ्ट का मतलब है लो अफिनिटी। ठीक है, और अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो ना एग्जाम में, तो आप ऐसा करना, राइट शिफ्ट का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेना, और लेफ्ट शिफ्ट का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेना पेंसिल से, और फिर कोई भी पार्शियल प्रेशर चूज कर लेना अपनी मर्जी का, और देखना कि हमारे पास उस पार्शियल प्रेशर पे सबसे ज्यादा परसेंटेज सैचुरेशन किसकी है। जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज सैचुरेशन होगी वो आपका हाईएस्ट अफिनिटी वाला होगा, और वो हमेशा आपका लेफ्ट शिफ्ट का ही ग्राफ होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? लेफ्ट शिफ्ट वुड ऑलवेज सजेस्ट ग्रेटर अफिनिटी, राइट शिफ्ट वुड ऑलवेज सजेस्ट लेस अफिनिटी। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग जब कर रहे हो ना पेपर को गो थ्रू या रिवाइज, तो आपके पास ये चीज हो, तो दैट यू हैव एन आइडिया कि हमने ये कैसे फिगर आउट किया था। अच्छा जी, पेंगुइन हेमोग्लोबिन इज वेरी सेंसिटिव टू डिक्रीज इन पीएच caused by an increase in the carbon dioxide concentration in the blood। डिक्रीज इन पीएच का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं? बिल्कुल, डिक्रीज इन पीएच मींस दैट देयर इज अ ग्रेटर concentration of H plus। अच्छा जी, explain how a decrease in pH affects penguin hemoglobin and suggest how this helps the penguin to swim underwater for a long time। अच्छा जी, ये बहुत आसान सा सवाल है, और ऐसा सवाल आ सकता है जो आपका राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन होता है, और क्या कहते हैं, हाउ दे रिलेट विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ये बहुत रिपीटेटिवली सवाल आते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। सो आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो ग्रिप है ना ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चंस ना अक्सर आते हैं। Okay, explain how decrease in pH affects hemoglobin and suggest how this helps the penguin to swim underwater for a long time। देखो, अगर हमारे पास ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं, तो हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है इट हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन आयंस इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, लेस अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जब हम हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कंपेयर करते हैं फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर ऑक्सीजन, तो व्हाट वी रियलाइज इज कि कंपैरेटिवली हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन आयंस देन विद ऑक्सीजन। हमारे पास अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होगी, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करना चाहेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना चाहेगा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स में, या प्रोटॉन्स के साथ बाइंड करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाना चाहेगा? करेक्ट मील? If anybody wants, I can repeat the question as well. Okay, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। लिसन, हमारे पास क्या कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन है उसकी जब हम कंपेयर करते हैं ना अफिनिटी या अट्रैक्शन towards hydrogen ions or towards oxygen, तो hemoglobin has a greater affinity for hydrogen ions and a lesser affinity for oxygen। ये comparative data हमारे पास मौजूद है, theoretically proven है। अगर हमारे पास एक एरिया में एक रीजन में या प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, so would the hemoglobin prefer to bind with hydrogen ions or would it prefer to bind with oxygen in this case scenario? हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ? हाइड्रोजन के साथ, राइट ना। उन्होंने हमें क्या कहा है? उन्होंने हमें ये कहा है कि डिक्रीज इन पीएच का बहुत इफेक्ट होता है किस पर? हमारे पेंगुइन्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल शुरू में उन्होंने बोला था कि जो पेंगुइन्स हैं दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अप टू 20 मिनट्स ड्यूरिंग दिस टाइम दे डू नॉट ब्रीथ बट देयर टिश्यूज कंटिन्यू टू रिस्पायर। ठीक है, ये उन्होंने हमें डेटा दिया हुआ था।
And they're asking us to tell us that how a decrease in pH affects penguin hemoglobin and suggest how this helps the penguin to swim underwater for a long time. अगर हमारे पास decrease in pH हो रहा है, this means that the hydrogen ion concentration is increasing. And if the hydrogen ion concentration is increasing, तो हमारे पास क्या हुआ? If there is a high hydrogen ion concentration, hydrogen ions would bind with hemoglobin, thereby oxygen will dissociate and release into respiring tissues, allowing the aerobic respiration to continue in penguin cells while they swim underwater. Is this clear? Any questions about this? You can also mention hydrogen ions would bind with hemoglobin because the affinity of hemoglobin towards oxygen reduces. ये भी आप mention कर सकते हो additional point. That is also acceptable अगर आप इसको explain करना चाह रहे हो. Hashim, I'll share the code after the class. मैं WhatsApp पे share कर दूंगी. Yeah, I think so. Description में शायद है. I'm not sure. I'll check and I'll update you accordingly after class. The heart rate of a penguin decreases while it is swimming underwater. Heart rate is regulated by a group of specialized cells in the wall of the right atrium. The activity of these cells is modified by nerve impulses. Name the group of specialized cells in the wall of the right atrium that regulates heart rate. Easy. Sinoatrial node. Ajari. Figure 3.1 is a photomicrograph of a transverse section through a region of the wall of the bronchus in the gas exchange system. तो ये हमारे पास bronchus का photomicrograph given है. Identify the tissues J and K shown in figure 3.1 and suggest how the wall of a bronchiole differs from the wall of the bronchus for these two tissues. हमारे पास ये bronchus है और हमें bronchus को compare करना है with bronchiole. अच्छा जी, J क्या है? J हमारे पास cartilage है और हमारे पास K. Now, who will tell me what K is? Um, हमारे पास so it's basically a continuous tissue that they're pointing towards. This is smooth muscle, totally. अच्छा, for any अगर हमारे पास goblet cell होते हैं ना, goblet cell की जो shape है वो कुछ इस तरह की होती है. This is how a goblet cell looks like. जैसे wine goblet होता है ना, बिल्कुल वैसी शेप होती है. क्या कहते हैं goblet cells की, तभी उनका नाम goblet है. So it looks like a wine goblet. These are basically smooth muscles. एक सेकेंड. अच्छा, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए if I ask you guys कि हमारे पास ये जो चीज है, what is this? What would you say? जो मैंने ये जो रीजन है जहां पे आपको ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, what do you guys think ये क्या है? ये जो इतने सारे हमें ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन्होंने याद तो नहीं पूछा बट एक दो क्वेश्चंस आए हैं जो हमने टॉपिकल्स के टाइम पे किए थे जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में. वेरी गुड. दीज आर कैपिलरीज. नाउ अक्सर लोग इनको कैपिलरीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ये कैपिलरीज क्यों है? देखो हमारे पास बॉडी में ना हर जगह कैपिलरीज प्रेजेंट है क्योंकि हर टिश्यू को, हर सेल को रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की. ये कैसे कैपिलरीज हैं? आई विल एक्सप्लेन.
एक कलरफुल पिक्चर भी मैंने उस टाइम पे दिखाई थी। आई विल चेक अगर मेरी गैलरी में अभी भी वो फोटो माइक्रोग्राफ पड़ा है। आई विल सी। एक मिनट, लेट मी चेक माई गैलरी फॉर दैट फोटो माइक्रोग्राफ। वो मैंने कलर्ड फोटो माइक्रोग्राफ से एक्सप्लेन की थी, तो ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है वो। लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके। सो ऐसी पिक्चर्स ना, ये एक्चुअली एग्जैक्ट पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में आपके एक पेपर में आ भी चुकी है इन प्रीवियस ईयर्स। तो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने उसका कलर्ड वर्जन ढूंढ के एक्सप्लेन किया था। अब आप लोग देखो, ये जो ऊपर वाली चीज है, ये तो हमारे पास सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ये सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये जो बीच बीच में आपको ये वाला रीजन नजर आ रहा है, ये जो है, ये आपकी होती है कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्यों होती है, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ ना, तो ये जो आपको सेल नजर आ रहे हैं, these cells, these are basically your RBCs। ये आपकी RBCs है। और अगर मैं बाउंड्रीज भी ड्रॉ करूँ ना, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह से ये वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये पूरी वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स है जो एक्चुअली देर लाइक वेसल्स। और इन वेसल्स में जो आपकी वो आरबीसी स्क्वीज होकर नहीं आ रहे होते, ये वो है। अक्सर ये कंफ्यूजिंग लगता है जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हो, इसीलिए मैं हमेशा इसकी ना पिक्चर दिखा देती हूँ, तो दैट इट्स इजियर टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड। सो ये जो सारा रीजन है, ये सारा रीजन, दीज आर ऑल कैपिलरीज विद रेड ब्लड सेल्स। ये अच्छा, अब ये क्या है, ये जो हमारे पास है, ये म्यूकस ग्लैंड है। दिस इज अ म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड की ऐसी शक्ल होती है। These dots are basically red blood cells। ये जो squeezed red blood cells होता है ना, ये dots उनको represent कर रहे हैं। ये हमारे पास mucus gland है। ये तो हमारे पास obviously epithelial cells हैं, ciliated columnar epithelial cells। और ये हमारे पास C-shaped cartilage का आधा part है। So this is basically a photomicrograph of a tracheum। So I would suggest, वैसे तो I hope इस explanation से clear हो गया हो, but अगर फिर भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसमें आई थिंक सो इतने क्लियरली गॉबलेट सेल्स नजर नहीं आ रहे। लाइक इतने ज्यादा यहाँ पे डेफिनेटली होंगे गॉबलेट सेल्स, बट इतनी क्लैरिटी के साथ इस पिक्चर में नहीं आ रहे। शायद इफ यू सी दिस वन, दिस हैज अ शेप ऑफ अ वाइन गॉबलेट, तो आप इसको गॉबलेट सेल्स कंसिडर कर सकती हो। तो बीच बीच में आपको वाइन शेप गॉबलेट सेल्स नजर आ रहे होंगे, बट इतना क्लैरिटी के साथ इसमें नजर नहीं आ रहा। बट मैंने अभी आउटलाइन ड्रॉ की ना, तो कुछ की ऐसे अगर सिलेंडर सॉरी कॉलमनर बाउंड्री है इस तरह के दिखते हैं, तो वो आपके सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स हैं। और जो सेल्स आपके कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, वो आपके क्या, हाँ, वाइन गॉबलेट। वाइन गॉबलेट देखा है? अगर नहीं देखा तो सर्च वाइन गॉबलेट, WINE गॉबलेट। तो उसका जो शेप होता है ना, इट्स लाइक अ वाइन ग्लास। वाइन ग्लास का जो शेप होता है, बिल्कुल वैसा शेप होता है इन सेल्स का। So is this clear? These photo micrographs that I showed you guys? बेसिकली हमारे पास जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ना, गॉबलेट सेल्स का काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन बनाना। और जो आपका म्यूकस ग्लैंड होता है, उसका काम होता है एक वाटरी फ्लूइड बनाना, जिसको सीरस फ्लूइड बुलाते हैं। म्यूकस ग्लैंड सिक्रिएट करते हैं सीरस फ्लूइड या वाटरी फ्लूइड टुवर्ड्स द एपिथेलियम। और जो एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन। जो म्यूसिन है और जो सीरस फ्लूइड आ रहा है म्यूकस ग्लैंड से, ये दोनों कंबाइन होकर म्यूकस बनाते हैं। सो गॉबलेट सेल्स म्यूकस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बाय मेकिंग द ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन। और हमारे पास जो म्यूकस ग्लैंड होता है, वो क्या कहते हैं, सीरस फ्लूइड बनाता है। और ये सीरस फ्लूइड और म्यूसिन मिलकर म्यूकस बनाते हैं। तो आधा काम कर रहा होता है म्यूकस ग्लैंड, आधा काम कर रहा होता है गॉबलेट सेल्स। यस, इट इज इन द सिलेबस। इट लुक्स लाइक अ फ्लोइंग रिवर। कह सकते हैं एक तरह से। आई मीन, इफ दैट हेल्प्स यू रिमेम्बर इट, देन व्हाई नॉट। मैंने कभी उसको इस तरह से देखा नहीं, तो शायद मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट इफ दैट हेल्प्स यू मेमोराइज इट एंड आइडेंटिफाई इट, देन कूल, इट वर्क्स। ओके। सो के हमारे पास क्या है, कि हमारे पास स्मूथ मसल्स है। हमें एक डिफरेंस देखना है बिटवीन द वॉल ऑफ अ ब्रोंक्यूल एंड द वॉल ऑफ अ ब्रोंकस। सो वी वुड सिंपली से wall of bronchus has cartilage, whereas walls of bronchioles do not have cartilage.
नहीं नहीं, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स है। मैंने इस रीजन की बात की है कि ये वाला जो रीजन है ना, छोटे छोटे जो आपको कंटिन्यूस डॉट्स नजर आ रहे हैं डार्क शेप, ये इसको मैं कैपिलरीज कह रही हूँ। ये सारी चीजों को, दीज आर कैपिलरीज। कैन वी राइट अबाउट alveoli इन bronchioles? वो वॉल्स ऑफ द गैस एक्सचेंज सिस्टम की बात कर रहे हो, तो वॉल्स में हम बेसिकली लेयर्स की बात कर रहे होते हैं ना। एल्वुलाई लेयर का पार्ट नहीं होती ना ब्रोंक्यूल के, इस वजह से हम एल्वुलाई मेंशन नहीं कर सकते। या फिर फिजा? अच्छा जी। Tuberculosis is an infectious disease that affects the human gas exchange system. The pathogen that causes TB secretes a protein that can be detected in saliva. The pathogen that causes TB secretes a protein that can be detected in saliva. Early diagnosis of TB is important in reducing the transmission of the pathogen. Scientists have developed a test strip for TB that uses monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies are specific in their action. This test strip contains mobile monoclonal antibodies that bind to one part of the protein secreted by the pathogen, immobilized monoclonal antibodies. Figure 3.2 shows a simplified diagram of the test strip. इस पार्ट ऑफ द टेस्ट स्ट्रिप को हम डिप करते हैं अपने सैंपल में, सलाइवा सैंपल में। म्यूकस ग्लैंड रिलीजेस सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड बताओ। ठीक है, ये आपको नोट से भी मिल जाएगा, द नोट्स दैट आई प्रोवाइड, उसमें मेंशन है ये सब कुछ। और हमारे पास क्या कहते हैं, जो सेकंड एरिया है, दैट कंटेन्स मोबाइल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अटैच टू टाइनी गोल्ड पार्टिकल्स। और हमारे पास क्या कहते हैं, टेस्ट एरिया 3 में वी हैव इमोबिलाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट बाइंड टू प्रोटीन। मोबाइल का मतलब है दे कैन मूव अक्रॉस द टेस्ट स्ट्रिप। इमोबिलाइज का मतलब ये है कि हमारे पास क्या कहते हैं, वो मूव नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास दिस इज बेसिकली टेस्टिंग सलाइवा सैंपल्स। फीसेस हमारे पास हम कॉलरा में देख रहे होते हैं, बिकॉज हमारे पास जो कॉलरा है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द फीकल ओरल रूट। कॉलरा का जो बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलरा, वो फीसेस में पाया जाता है, तो कॉलरा के लिए हम फीसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो आपके नोज के म्यूकस में या आपके सलाइवरी म्यूकस में, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सो चूंकि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो जिसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जिस मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल करता है पैथोजन, हम वहां पर टेस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ अ पैथोजन इज प्रेजेंट इन द ब्लड, उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करेंगे, सलाइवरी या फीकल टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके जी। A sample of saliva is collected and put out onto the sample pad in the test strip. The saliva moves up the test strip through area 2. The mobile monoclonal antibodies are attached to tiny gold particles. If these antibodies collect in test area 3, a gold line becomes visible on the test strip. A gold line that becomes visible in area 4 confirms that the test strip is working and that the results are valid. हमने सिमिलर इस तरह का सेटअप जो हमारा 2022 का पेपर हमने किया था, उसमें भी एग्जैक्टली यही सेम किस्म का क्वेश्चन था, बट वो कॉलेरा के रिस्पेक्ट से था, आई बिलीव, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टीबी। अच्छा जी, स्टेट द नेम ऑफ द पैथोजन दैट कॉजेस टीबी। माइकोबैक्टीरियम बोविस लिख दो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस लिख दो, एक्सेप्टेबल टर्म्स है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस और बोविस दोनों लिख सकते हो, कोई एक लिखना है बिकॉज 1 मार्क का है। Name the part of the monoclonal antibody that binds to the protein from the pathogen. तो हमारे पास एंटीबॉडीज का जो एंटीजन बाइंडिंग साइड है, वो उनका क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द स्पेसिफिक पैथोजन, तो हम वो लिख देंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अच्छा जी। Saliva is added to a test strip to test for the presence of the protein secreted by the TB pathogen. Figure 3.3 is a diagram showing some of the molecules in area 3 of the test strip when a positive result for TB is obtained. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अटैच टू अ टाइनी गोल्ड पार्टिकल, तो ये टाइनी गोल्ड पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं। प्रोटीन सिक्रीटेड बाय द टीबी पैथोजन अटैच टू टू डिफरेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इमोबिलाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन एरिया 3 अटैच टू टेस्ट लाइन। Use the information in figure 3.3 to suggest and explain why this test is specific for TB. हमारे पास
कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसी एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं, नो वी कैन नॉट राइट रिसेप्टर खतीजा, बिकॉज हमारे पास, हमें पता है ना कि एंटीबॉडीज का जो एरिया जो बाइंड करता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो हम वही यूज करते हैं। बिकॉज एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ा होता है सिलेबस में, सो इट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स अस टू यूज द पर्टिकुलर टर्म। हम यहाँ पर अगर रिसेप्टर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, now use the information in figure 3.3 to suggest and explain why this test is specific for TB। हम जब भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज कर रहे होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में, तो हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी हम यूज कर रहे हैं ना अपने टेस्ट में, दैट वुड बी स्पेसिफिक टू द पैथोजन और द प्रोटीन सेक्रेटेड बाय द पैथोजन। जो भी चीज हम क्या कहते हैं डायग्नोस करना चाह रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल की प्रेजेंस हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी ना वो स्पेसिफिक होंगी या कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप होंगी टू दैट पर्टिकुलर पैथोजन और द पर्टिकुलर प्रोटीन सिक्रीटेड बाय द पैथोजन। सो हमारे पास हम यही स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, दैट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज of the binding site, we can say the antigen binding site of the particular monoclonal antibody is complementary to the protein secreted by TB pathogen। यस, जी, हम सिंपल ये नहीं लिख सकते कि टू द टीबी पैथोजन। नहीं, इसलिए वैसे अगर ये हमें स्पेसिफिक केस नहीं बताते ना तो हम खाली यही लिखते हैं कि हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो टीबी पैथोजन से क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन यहाँ पर पैथोजन बाइंड नहीं कर रहा। पैथोजन क्यों नहीं बाइंड कर रहा? बिकॉज देखो पैथोजन एक बैक्टीरियल सेल होता है। माइकोबैक्टीरियम बोवेस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो सेल होता है वो पैथोजन होता है। यहाँ पर वो सेल बाइंड नहीं कर रहा, उस सेल ने जो प्रोटीन सिक्रीट किया है वो बाइंड कर रहा है। अगर तो ये हमें सिचुएशन नहीं पता होती, ये केस नहीं पता होता, तो हम यही कहते हैं कि जो पैथोजन है वो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा या एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें एक फिगर दी है और हमें उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी अपना आंसर लिखना है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं आस्क यू अबाउट a question with respect to the figure or the table, always quote the information present in the table or the figure or the graph। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अपना आंसर फॉर्मेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी would therefore only bind to the protein secreted by TB pathogen। Area 4 contains different immobilized antibodies to those in Area 3. The mobile monoclonal antibodies bound to tiny gold particles will bind to these immobilized monoclonal antibodies in Area 4। हमारे पास जो Area 4 है, which is the control area, they are saying कि उस Area 4 में different immobilized antibodies present है, which are different to the ones present in Area 3। एरिया 4 में भी एंटीबॉडीज हैं, एरिया 3 में भी एंटीबॉडीज हैं, लेकिन दोनों एरियाज में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो डिफरेंट है। The mobile monoclonal antibodies bound to tiny gold particles will bind to these immobilized monoclonal antibodies in area 4। तो जो हमारे पास मोबाइल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज गोल्ड पार्टिकल्स वाली हैं वो बाइंड करेंगी एरिया 4 वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। If the test has functioned correctly, a gold line will be visible in area 4। Suggest how the structure of immobilized monoclonal antibodies in area 3 differs from the structure of the immobilized monoclonal antibodies in area 4।
इसका सिंपल जो सवाल है उसका जो निचोड़ है वो ये है कि दो एंटीबॉडीज डिफरेंट क्यों होती हैं, ऐसा क्या डिफरेंट होता है दो डिफरेंट एंटीबॉडीज में जिसकी बदौलत हम ये क्या कहते हैं कंक्लूड कर पाते हैं कि ये डिफरेंट है। वी वुड जस्ट डू वन लिटिल क्वेश्चन, आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी, आई थिंक सो 2:50 तक। यस बिल्कुल, हमारे पास एक तो उनका एंटीजन बाइंडिंग साइट और द वेरिएबल रीजन वुड बी डिफरेंट। तो द एंटीजन binding site of monoclonal antibodies in area 3 and area 4 would be different. अच्छा, दूसरा हमारे पास एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स। Glycoproteins basically are a conjugate molecule of protein and sugar chains. हमारे पास बेसिकली दो प्रोटीन्स, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो ग्लाइकोप्रोटीन्स डिफरेंट है। दो ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर डिफरेंट हैं तो हो सकता है उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर, उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर, उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्क हो। So another reason why the antibodies in area 3 and area 4 are different can be that the antibodies have different tertiary structure or you can say primary structure। उनका sequence of amino acids different हो सकता है जिसकी वजह से उनका primary structure different होगा। अगर उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। डज दिस मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ओके। Vaccination is another way of reducing the transmission of infectious diseases such as TB. The BCG vaccine is used to help control the spread of TB. This vaccine contains a weakened strain of the pathogen that causes TB. The BCG vaccine stimulates the development of antigen-specific memory T lymphocytes. Explain how memory T lymphocytes provide protection from TB in a person who has been given a BCG vaccination. Vaccination में हम क्या करते हैं? हम किसी भी डिजीज, किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के जो पैथोजन होता है उसका वीकेंड पार्ट या उसका डेड पार्ट या उसका कोई सब यूनिट इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर देते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एंटीबॉडीज बना देता है और क्या कहते हैं मेमोरी सेल्स बना देता है। इन केस अगर नेचुरल कंडीशंस में एनवायरनमेंट से वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आए तो हमारी बॉडी के पास पहले से ही इम्यूनिटी हो, पहले से ही एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स प्रेजेंट हो विच कैन बाइंड टू द पैथोजन बाय रिकग्नाइजिंग इट इमीडिएटली। सो ये फायदा होता है वैक्सीन का। सो वी वुड से the vaccination provides long-term immunity against TB as memory cells are produced. This would ensure a faster secondary immune response upon subsequent exposure. जब दूसरी तीसरी चौथी दफा वो पैथोजन आएगा तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो कंपैरेटिवली फास्टर होगा। टी लिम्फोसाइट्स की रिस्पेक्ट से बात करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, वो बेसिकली सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में फास्टर साइटोकाइंस रिलीज करके क्या कहते हैं हमारा ह्यूमोरल या फिर हाँ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देंगे। द टी लिम्फोसाइट्स would release cytokines faster to trigger adaptive immune response लिख दो या humoral immune response लिख दो। The bladder is the organ in the body used to store urine. When cells divide uncontrollably in the bladder, a tumor develops. This can lead to a bladder cancer.
The BCG vaccine has been used to treat bladder cancer. The BCG vaccine is introduced into the bladder. The tumor cells take up the weakened pathogens in the vaccine and act as antigen presenting cells. तो होता क्या है, वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, वो हम दे देते हैं ट्यूमर सेल्स को, और ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर जो वो वीकेंड एंटीजन जाता है, तो वो उसी एंटीजन को जो ट्यूमर सेल्स हैं वो अपनी सरफेस पर प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं. दैट वुड ट्रिगर द एंटीजन प्रेजेंटेशन, और एंटीजन प्रेजेंटेशन अगर होगी तो हमारे पास टी हेल्पर सेल्स ट्रिगर हो जाएंगे. टी हेल्पर सेल्स ट्रिगर हो जाएंगे तो पूरा जो हमारा अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो जाएगा. सो बीसीजी वैक्सीन हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी या इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं. नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय ट्यूमर सेल्स टू टेक अप द वीकेंड पैथोजेंस. अच्छा जी, हमारे पास व्हाट डू यू थिंक, किस प्रोसेस के थ्रू ट्यूमर सेल्स वीकेंड पैथोजेंस को ले रहे होंगे अंदर? फेगोसाइटोसिस, वेरी गुड. फेगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस, either one of them. Suggest how antigen presentation by tumor cells stimulates an immune response that leads to the destruction of the tumor cells. Exactly वही बात मैंने की थी कि जैसे ही एंटीजन अंदर जाएंगे, अब बीसीजी वैक्सीन वाले, वो ट्यूमर सेल्स उन एंटीजन की प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे. इसमें बेसिकली हमने पोस्ट एंटीजन प्रेजेंटेशन किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है वो सब लिस्ट डाउन करना है. सो एंटीजन प्रेजेंटेशन would stimulate complementary T helper cells to bind with the antigen on cell surface. They would basically release cytokines. अच्छा, ट्यूमर सेल्स की अगेंस्ट कौन सा वाला इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है? क्या कहते हैं, अडेप्टिव में से ह्यूमरल ट्रिगर होता है या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है? वेरी गुड. सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जो कि कैरी आउट कौन कर रहे होते हैं? टी किलर सेल्स कैरी आउट कर रहे होते हैं. टी किलर सेल्स किस तरह से इरेडिकेट करते हैं ट्यूमर सेल्स को? दे बेसिकली रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन peroxide or interferons which cause cell lysis of the tumor cells. T killer cells produce toxic substances such as hydrogen peroxide and interferons to cause the lysis of tumor cells. Is this clear? Any questions? Figure 4.1 shows the structure of sucrose, a disaccharide produced by plant cells. Name the covalent bond that joins the two monomers in sucrose. So the covalent bond that joins the two monomers in sucrose is the glycosidic bond. Sucrose is hydrolyzed by the enzyme sucrase in the human digestive system. The products of this hydrolysis reaction are the monosaccharides alpha glucose and fructose. Complete the diagram to show the hydrolysis of sucrose to form alpha glucose and fructose. Now, when we're talking about sucrose is made up of alpha glucose and fructose. हमारे पास जो fructose का shape होता है वो एक pentagon shape होता है. If you can see, ये pentagon shape है और ये हमारे पास एक हेक्सागोन है. तो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारी ग्लूकोज जो है इट लुक्स लाइक अ हेक्सागोन, वेयर एज द फ्रक्टोज वुड लुक लाइक अ पेंटागोन. सो यहाँ पर सिंपली हमारे पास हमें हाइड्रोलिसिस शो करना है. हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो क्या कहते हैं, ब्रेक हो रहा होता है. और वो कैसे ब्रेक हो रहा होता है? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर. सो वी विल शो दैट वी आर एडिंग वाटर ताकि हम दिखा सकें कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ वाटर हमारे पास क्या कहती हैं, जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इट वुड ब्रेक. एंड बिकॉज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वुड ब्रेक, तो हमारे पास एक मोनोमर के पास क्या कहते हैं,
एच जाएगा वो ओ एच बन जाएगा, लेट्स से ये हमारे पास ओ एच बन गया, और एक के पास क्या कहते हैं, इसके पास भी ओ एच जाएगा। ना तो क्वेश्चन है कि हमारे पास दोनों के पास ओ एच कैसे ऐड हो रहा है जबकि हम खाली वाटर ऐड कर रहे हैं। नाउ यू सी वन ऑफ देम वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एन ओ, तो ये वाला जो ओ है ना वो या तो इसका ओ होगा या फिर इसका होगा। तो हमारे पास आउट ऑफ दीज टू ओज हमारे पास वाटर एक ही ओ को कंट्रीब्यूट करेगा। जो दूसरा ओ है इट इज एक्चुअली दिस ओ ओनली, सो दिस ओ बिलोंग्स टू ईदर वन ऑफ द मोनोमर्स। तो हमारे पास एज इट इज शेप होगी, क्या कहते हैं, इन दोनों मोनोमर्स की हम दोनों में क्या कहते हैं, इस पॉइंट पर ओ एच और ओ एच ऐड कर देंगे। सो दिस वुड बेसिकली लुक लाइक, I'm gonna copy paste it. Basically, the monomers would now look something like this. तो हमारे पास एक मोनोमर ये होगा और दूसरा मोनोमर हमारे पास ये होगा। I will edit these for you guys. इसमें we would add an OH over here, और इसमें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर OH ऐड करेंगे। So when I will share the exam paper, मैं ये पूरा draw out करके I'll show you guys. But basically हमारे पास हम जब water ऐड करेंगे तो हमारे पास एक OH इस मोनोमर पे हम ऐड कर देंगे और एक OH हम इस मोनोमर पे ऐड कर देंगे। और ये क्यों हो रहा है, ये हाइड्रोलिसिस या एडिशन ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है। नाउ plants transport sucrose from source to sink. Figure 4.2 is a scanning electron micrograph SEM of a transverse section through a plant tissue used to transport sucrose. हमारे पास जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट है या कार्बोहाइड्रेट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सी वेसल के अक्रॉस हो रहा होता है, वो फ्लोएम के थ्रू हो रहा होता है। Phloem is responsible for the transport of sucrose from source to sink. हमारे पास we have a figure of the plant tissue which is phloem, which is responsible to transport sucrose. Name the structure labeled X in figure 4.2. You can clearly see कि हमें sieve pores नजर आ रहे हैं। तो ये जो structure होगा वो basically क्या होगा, it would be a sieve plate. A scientist carried out an experiment to study carbohydrate transport in the stem of a woody plant. तो एक woody plant का stem उसने लिया और उसका क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट स्टडी करने के लिए he carried out an experiment. Figure 4.3 shows a plant diagram of a transverse section of the stem studied by the scientist. The position of the xylem tissue in the stem is shown. ये हमारे पास क्या कहते हैं, I'm going to highlight the area which is for xylem. हमारे पास ये सारा जो एरिया है, ये वाली जो पूरी बाउंड्री है, ये आपकी जाइलम की बाउंड्री है। ये पूरा सर्कल आपका डिनोट कर रहा है किसको, कि यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास जो इससे बाहर वाला सर्कल है ये बता रहा है कि यहाँ पे आउटर स्टेम टिश्यूज प्रेजेंट है, और जो इनर मोस्ट सर्कल है ये हमारे पास पिथ है। और इन दोनों के दरमियान जो मैंने ब्राउन कलर का एरिया हाईलाइट किया, दैट इज द एरिया वेयर जाइलम टिश्यू इज प्रेजेंट. The scientists carried out a set of experiments using plants of the same species. In each experiment, a ring of tissue was removed from the outer stem of the plant, but the xylem tissue was left intact. This is shown in figure 4.4. तो basically हमारे पास let's say कि ये हमारे पास एक stem है, ये हमारे पास पूरा stem है एक plant का। हमारे पास जो स्टेम है उसकी लेयर्स होती हैं। पहली जो लेयर है वो आउटर स्टेम टिश्यूज वाली लेयर है, फिर बीच वाली जो लेयर है वो जाइलम टिश्यू की लेयर है, और इनर मोस्ट जो लेयर है वो पिथ है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेम को पील ऑफ करना शुरू किया या काटना शुरू किया। सो वी स्टार्टेड टू, क्या कहते हैं, कट द रीजन ऑफ द स्टेम। सो ये आपस में यहाँ से इंटैक्ट है, बट बीच का जो हिस्सा है जो हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके हम पील ऑफ कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। और जब हम रिमूव कर रहे हैं रीजन, तो हमारे पास पहले जो स्टेम था वो इस तरह का दिखाई देता था, एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर देयर इज दिस रीजन वेयर वी हैव रिमूव सम पार्ट ऑफ द आउटर स्टेम टिश्यू। लेकिन हम जिस तरह से स्टेम को रिमूव कर रहे हैं, वी आर इंश्योरिंग कि जो जाइलम टिश्यू है ना उसको कुछ ना हो, हमारा जाइलम टिश्यू इंटैक्ट रहे। सो ऑल्दो वी आर रिमूविंग अ रिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम द आउटर स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट,
but we are ensuring that the xylem tissue is left intact. This is shown in figure 4.4. The mass of carbohydrate transported to the lower part of the stem in 24 hours was recorded. In each experiment, a different percentage of the outer stem tissue was removed. All other variables remained constant. Table 4.1 shows the results of this investigation. जब 13% स्टेम टिश्यू रिमूव किया तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का मास जो ट्रांसपोर्ट हुआ था टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम दैट वाज 774 मिलीग्राम्स, तो 774 मिलीग्राम्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट हो रहा था जब हमने 13% आउटर स्टेम टिश्यू रिमूव किया. Then we removed 67% of the outer stem tissue. जब हमने 67% आउटर स्टेम टिश्यू रिमूव किया तो अब 774 के बजाय 597 मिलीग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू द सिंक एरिया. तो हमारे पास जैसे जैसे हम आउटर स्टेम टिश्यू ज्यादा रिमूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे द कार्बोहाइड्रेट दैट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम उसकी मास में कमी आ रही है टू एन एक्सटेंट कि जब हमने 100% आउटर स्टेम टिश्यू रिमूव कर दिया यानी कि ये पूरा पार्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता और हमारे पास खाली ये ब्राउन वाला हिस्सा और अंदर का जो पिथ वाला हिस्सा है ये एग्जिस्ट करता है. आउटर स्टेम टिश्यू हमने सारा कट आउट कर दिया. वी आर ओनली लेफ्ट विद द जाइलम टिश्यू रीजन एंड द पिथ रीजन. व्हेन दैट हैपेंड, zero mass of carbohydrate was getting transported. जाइलम अभी भी मौजूद है लेकिन जाइलम के इर्द गिर्द जितने भी टिश्यूज थे दे ऑल हैव बीन रिमूव्ड. And when all the tissues around the xylem have been removed, there is no carbohydrate transport taking place to the sink. इसका मतलब है कि हमारे पास जो source to sink connection है, that connection has been cut off. Which means कि हमारे पास जो phloem है, you always need to know this कि हमारे पास जो vascular bundles हैं, vascular bundles क्या होते हैं? हमारे xylem और phloem. Xylem और phloem coexist करते हैं. जहां xylem होती है, वहां पर हमारे पास phloem भी present होता है. So if the xylem tissue is intact and there is no carbohydrate transport taking place, इसका मतलब ये है कि जो outer stem tissue का area remove हुआ है, उसमें सारे का सारा phloem भी remove हो चुका है. And because xylem is not responsible for the transport of carbohydrates, तो even though xylem को हमने नहीं छेड़ा, xylem अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद अगर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट सुक्रोज ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास द फ्लोएम व्हिच इज प्रेजेंट विद इन दिस रीजन हैज बीन कंप्लीटली रिमूव, जिसकी वजह से मास फ्लो ऑफ सुक्रोज नहीं हो पा रहा. Does this make sense? Any questions about this? So we would say phloem is responsible for the transport of carbohydrates when all the outer stem tissue is removed while the xylem remains intact. It results in no mass of carbohydrates being transported to the cell. This means that foam tissue has been completely removed.
वी कैन ऑल्सो से कि हमारे पास जैसे जैसे हम आउटर स्टेम टिश्यूज का परसेंटेज रिमूव करते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे पास मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे उसमें डिक्रीज आ रहा है. सो वी कैन से दैट as the percentage of outer stem tissue was decreasing, the amount of carbohydrates getting translocated was also decreasing. So we can mention the trend. Sucrose is a sweet tasting sugar found in many foods. Some people become ill when they have sucrose in their diet. These people have a gene mutation in the gene coding for sucrase. Sucrase was the enzyme that acts upon sucrose. तो हमारे पास जो sucrase enzyme है वो उन लोगों में sucrase enzyme को जो जीन कोड कर रही होती है उस जीन में म्यूटेशन हो जाती है. एंड उस म्यूटेशन की वजह से उनका जो सुक्रोज है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता एंड सुक्रोज बिल्डअप शुरू हो जाता है. Scientists studying the DNA of people with this condition identified a deletion mutation in the gene coding for sucrase, suggest and explained why a person with this deletion mutation cannot digest sucrose. Now, हमारे पास अगर डिलीशन हो गई है और उसकी वजह से हमारा क्या कहते हैं जो एंजाइम है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया. देखो जब भी फंक्शन किसी चीज का चेंज हो रहा है ना या फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है तो उसका मतलब ये है कि उस चीज का स्ट्रक्चरली कोई चेंज आया है. जब भी स्ट्रक्चरल चेंज आता है दैट वुड अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. तो हमारे पास अगर सुक्रेज जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रही सुक्रोज को, सुक्रेज इज द एंजाइम, सुक्रोज इज द सबस्ट्रेट. सो अगर ये हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है कि ईएस कॉम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे. ईएस कॉम्प्लेक्सेस कब नहीं बन पाते? जब एक्टिव साइट चेंज होती है. एक्टिव साइट कब चेंज होती है? जब हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज होता है. टर्शरी स्ट्रक्चर कब चेंज होता है? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज होता है. एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं उनको क्या चीज डिटरमिन कर रही होती है? उनको सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिटरमिन कर रहा होता है. यहाँ पर देयर सेइंग कि म्यूटेशन हुई है. म्यूटेशन ने क्या किया होगा? म्यूटेशन ने सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज किया होगा जिसकी वजह से हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स चेंज हुआ होगा which resulted in the change in primary and tertiary structure, leading to the active site causing the active site shape to change, which is no longer complementary to sucrose or its substrate. अगर हमारे पास एंजाइम अपना रिएक्शन कैरी आउट नहीं कर पा रही तो इसका मतलब है कि उसकी एक्टिव साइट चेंज हुई है. एक्टिव साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टर्शरी स्ट्रक्चर. तो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज होता है तभी एक्टिव साइट शेप की चेंज होती है. तो हमारे पास वी वुड ऑलवेज से कि इफ देयर इज अ म्यूटेशन ऑन द जीन दैट इज कोडिंग फॉर एन एंजाइम तो इस म्यूटेशन ने सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज किया होगा जिसने स्ट्रक्चर बदल दिया होगा हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन का. वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, बिकॉज टर्शरी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द एक्टिव साइट. तो हमारे पास अगर एक्टिव साइट का शेप चेंज हो रहा है तो वो किस वजह से चेंज होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से. ठीक है बता. अच्छा, trypsin is an enzyme which catalyzes the hydrolysis of casein, a protein found in milk. So हमारे पास again there is this enzyme trypsin which is a protease which hydrolyzes casein which is a protein. तो ये हमारे पास enzyme है, ये उसका substrate है. Milk that contains casein has a cloudy white appearance. As the casein is hydrolyzed by trypsin, the milk changes in appearance to a clear, transparent, colorless solution.
So before hydrolysis of casein, the milk appears to be white in color. And when the casein is hydrolyzed, it is broken down, the milk changes its color from white to transparent. So white to transparent. ये कब होता है? When our trypsin is carrying out hydrolysis. A student carried out an experiment to investigate the effect of enzyme concentration on the rate at which trypsin hydrolyzes casein. So we are checking the relationship or investigating the relationship between enzyme concentration and rate of enzyme activity. The student added a solution of trypsin to a sample of milk and recorded the time taken for the milk to become transparent. The student repeated the experiment with different concentrations of trypsin. All other variables were kept constant. So we were changing the concentration of the enzyme and we were seeing that how is it affecting the time taken for hydrolysis to take place. Hydrolysis का हमें कैसे पता चल रहा था? जितनी जल्दी मिल्क व्हाइट से ट्रांसपेरेंट होगा उतना ज्यादा क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा. Figure 5.1 shows the results from the experiment. So this is figure 5.1 which shows the results from the experiment. हम जैसे जैसे क्या कहते हैं concentration of trypsin बढ़ा रहे थे यानी कि हम enzyme concentration जैसे जैसे बढ़ा रहे थे the time taken for milk to become transparent decreases. If the time taken for a reaction to reach completion is decreasing, it means that the reaction is occurring at a faster rate. A lot of times the confusion in such graphs is that क्योंकि डिक्रीजिंग कर्व होता है तो हमें लगता है अच्छा हमारे पास तो रेट डिक्रीज हो रहा है. नो, इफ द टाइम टेकन फॉर समथिंग इज डिक्रीजिंग यानी एक चीज जल्दी हो रही है. एक चीज जल्दी कब कंप्लीट होती है? जब उस चीज का रेट जल्दी हो जाता है या फास्टर हो जाता है. सो डिक्रीज इन टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन एक्चुअली टेल्स अस दैट दैट रिएक्शन वाज अ फास्टर रिएक्शन बिकॉज इट रीच्ड कंप्लीशन अर्ली. तो हमारे पास जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं द टाइम टेकन फॉर द मिल्क टू बिकम ट्रांसपेरेंट इज डिक्रीजिंग यानी मिल्क ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज हो रहा है. ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होने का मतलब ये है कि ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है. डज दिस मेक सेंस? दैट if a reaction is occurring quicker at it is taking less time, it means कि उस reaction का जो rate है वो faster है. Do we all have this concept? Any questions? Anything you guys want me to repeat? Okay. When the concentration of trypsin increases from 2% to 4%, the time taken for the milk to become transparent decreases by 48%. Calculate the percentage decrease in the time taken for milk to become transparent when the concentration of trypsin increases from 0.25 to 0.5%. Write your answer to the nearest whole number. इसके लिए हमें ग्राफ को यूज करना है. हमें देखना है कि 0.25% पे कितना टाइम लग रहा था, 0.5% पे कितना टाइम लग रहा था और हमें परसेंटेज डिक्रीज बताना है उस चेंज का. सो हमारे पास 0.5 और 0.25 पे हमें टाइम चेक करना है. 0.5 would be this thing. So I would extend my graph. So this point is for 0.5. 0.5% पे हमारे पास कितना टाइम लग रहा है? 244, 248, 252, 256. So this is 256 seconds at 0.5. And at 0.25 हमारे पास this is 0.25. 0.25 पे it is basically 384, 388. So हमारे पास from when we are increasing the percentage of our enzyme concentration from 0.25 to 0.5 तो हमारे पास डिक्रीज कितना है 388 से 256. तो चेंज कितना है? या अगर मैं डिक्रीज की वैल्यू आपसे पूछूं सो डिक्रीज इज 388 minus 256. This comes out to be 388 minus 256, 132. हमें इस डिक्रीज को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो इसको हम कैसे करेंगे? वी वुड से डिक्रीज कितना था हमारे पास? डिक्रीज वाज 132. परसेंटेज डिक्रीज देनी है तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू
यानी चेंज से पहले वाली क्या वैल्यू थी हमारे पास, इक्वल्स टू परसेंटेज, एक्चुअली न्यू परसेंटेज अपॉन ओल्ड परसेंटेज। नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, वी आर गोना प्लग इन ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। हमारे पास वैल्यू ऑफ डिक्रीज इज 132। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू बिफोर चेंज क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू बिफोर चेंज वाज 388। न्यू परसेंटेज जो हमारे पास डिक्रीज की परसेंटेज है, वी डू नॉट नो दैट, दिस वुड बी 100। सो x would come out to be 34.02%, which we can round off to the nearest full number, which is 34%। या अगर 33.5 आ रही है तो आप इसको जब राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट होल नंबर पे नील, तो आपका भी आंसर 34% आएगा। बॉक्स रीडिंग में शायद आपसे क्या कहते हैं थोड़ी डिस्क्रिपेंसी हो गई होगी, बट स्टिल यू गेटिंग द सेम आंसर, बिकॉज आप जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 34% ही आप आंसर दोगे। अच्छा जी, एक्सप्लेन द रिजल्ट शोन इन फिगर 5.1। हमारे पास क्या हो रहा है फिगर 5.1 में, फिगर 5.1 में सिंपली एज वी आर इंक्रीजिंग द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, द टाइम टेकन फॉर मिल्क टू बिकम ट्रांसपेरेंट, द टाइम टेकन फॉर मिल्क टू बिकम हाइड्रोलाइज्ड इज डिक्रीजिंग। यानी जल्दी हमारे पास मिल्क ट्रांसपेरेंट हो रहा है, जल्दी हमारे पास मिल्क हाइड्रोलाइज हो रहा है, जल्दी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोलिसिस का। ये क्यों हो रहा है? हमारे पास इनिशियली, कैन यू गाइस टेल मी कि लो सबस्ट्रेट सॉरी लो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में why it was taking more time for the milk to get hydrolyzed, and why when we have more enzyme concentration, why are we having less time taken for the milk to become transparent? यहाँ पर स्लो रेट क्यों है और यहाँ पर हाई रेट क्यों है? कैन यू गाइस गिव मी एक्सप्लेनेशन? Right. So at lower enzyme concentration or at lower trypsin concentration, the active sites or the number of enzymes are less, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं कम ES complexes बन रहे होंगे। As the concentration increases, the number of active sites present also increases. Due to जब भी substrate concentration बढ़ती है या enzyme concentration बढ़ती है, हमारे पास frequency of effective collision बढ़ेगी। जब frequency of effective collision बढ़ेगी, enzyme substrate complexes ज्यादा form होंगे। enzyme substrate complexes जितने ज्यादा form होंगे, उतना ज्यादा हमारे पास reaction का rate बढ़ेगा। So at low concentration of trypsin, less active sites are present, increasing the concentration of trypsin, increases the number of active sites, which results in more successful or it increases the frequency of effective collision between enzyme and substrate. Therefore, the rate of reaction increases. अच्छा, हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात की थी। जब भी ज्यादा क्या कहते हैं कोलिजन्स होंगी, more ES complexes are formed. ठीक है, pretty straightforward. अच्छा देखो, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं ना, दो किस्म के ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। एक होता है डिस्क्राइब, एक होता है एक्सप्लेन। ठीक है, when we are talking about describe, in describe हमारे पास हमें ट्रेंड बताना होता है, and with trend I mean कि हमारे पास describe में we don't give the biology or the biochemistry of what is happening, we just tell what we can see. When you're answering a describe question, answer it as if you do not know biology, as if you
have been given a picture, और ये सिर्फ ग्राफ के लिए नहीं, जहां पर भी आपको डिस्क्राइब करना होता है ना, आपको जो नजर आ रहा होता है आपने खाली वो बताना होता है। सो अगर यही क्वेश्चन डिस्क्राइब का आता है तो आप क्या लिखते हैं, दैट एज द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द टाइम टेकन फॉर मिल्क टू बिकम ट्रांसपेरेंट डिक्रीजेस। और फिर आप कंपैरेटिव डेटा देते हैं। आप कंपैरेटिव डेटा कैसे देते हैं, क्या बताते हैं कि 0.5 पर 256 है और 4 पे हमारे पास इट इज आई थिंक सो 60। सो आप कंपैरेटिव डेटा देते हैं। तो डिस्क्राइब में यू टेल व्हाट यू कैन सी, and when they ask you to explain, in that question you tell the biochemistry or the biology behind it। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा किसी भी पॉइंट पर हम ट्रेंड नहीं बता रहे या कंपैरेटिव डेटा नहीं दे रहे, वो हम कब देते हैं जब हमें डिस्क्राइब करना होता है या हमें एनालाइज करना होता है। when they ask us to explain, explain का मतलब है कि आपने पीछे की बायोलॉजी बतानी है। so the biology behind any enzyme reaction is कि हमारे पास ES कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बन रहे हैं या ES कॉम्प्लेक्सेस कम बन रहे हैं। वह जब हम बात कर रहे होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट से या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल ऑफ द एंजाइम और द सबस्ट्रेट, जो बेसिकली हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। जब कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ वो रिएक्टेंट्स बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इस वजह से ज्यादा होती है, इस वजह से ES कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनता है। अगर यही क्वेश्चन होता हमारे पास टेम्परेचर का, सो टेम्परेचर में जो हमारे पास ES कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बन रहे होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, इस वजह से ES फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ज्यादा ES कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। सो इन द एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस यू गेट इनटू द बायोलॉजी ऑफ इट, इन द डिस्क्राइब क्वेश्चंस यू ओनली टेल व्हाट यू कैन सी। सो यू मेंशन द ट्रेंड्स, यू मेंशन द कंपैरेटिव डेटा पॉइंट्स, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, यस, ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तो डिस्क्राइब में आपने सिर्फ बताना होता है कि क्या कहते हैं हमारे पास कितने वो बन रहे हैं, कितना हम क्या हमें नजर आ रहा है। और हमारे पास जो एक्सप्लेन का क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ना बायोकेमिस्ट्री बिहाइंड दैट। Trypsin has the potential to be used in a wide range of industrial processes. The use of immobilized enzymes in industrial processes has many advantages. Scientists investigated the effect of temperature on the activity of trypsin immobilized on the surface of a material and trypsin free in solution. So we are comparing a free enzyme and an immobilized enzyme. Table 5.1 shows the results of this investigation. So हमारे पास क्या कहते हैं, लोअर टेम्परेचर पे हमारी जो immobilized enzyme है उसके क्या कहते हैं 60% से 100% जा रहे हैं व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑन द कॉन्ट्री जब हम फ्री सोल्यूशन वाले एंजाइम की बात करते हैं, फ्री एंजाइम की बात करते हैं, तो हमारे पास व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर डिक्रीज आ रहा है, यहाँ पर इंक्रीज आ रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। State a reason for the difference in percentage of maximum activity of immobilized trypsin and trypsin free in solution and 25 degree Celsius. We have to explain कि why हमारे पास जो 25 डिग्री सेल्सियस है उसमें जो हमारे पास immobilized एंजाइम है वो 60% काम कर रही है, और जो हमारे पास फ्री सॉल्यूशन वाली एंजाइम है वो 100% काम कर रही है। कैन यू गाइस गिव मी एनी रीजंस दैट यू गाइस कैन कम अप विद? आई रिपीट, the question asks us कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो immobilized एंजाइम है it is only working at क्या कहते हैं 60% of its maximum capacity, whereas the free enzyme, this is your free enzyme, it is working 100% maximum capacity पे वो काम कर रही है। They're asking us what could be a possible reason for this difference. Why is the immobilized enzyme performing lesser in comparison to the free enzyme at 25 degrees Celsius? वेरी गुड, वी कैन से कि हमारे पास जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है इट इज नॉट प्रॉपरली इन कांटेक्ट विद ऑल द सबस्ट्रेट्स। हमारे पास जो मटेरियल है जो कवर किया हुआ है इमोबिलाइज्ड एंजाइम को, वो मटेरियल कैन बी कवरिंग द एक्टिव साइट ड्यू टू व्हिच आवर इमोबिलाइज्ड एंजाइम इज नॉट exhibiting maximum activity. Very good. हम एक और बात ये भी कर सकते हैं, फ्री सॉल्यूशन में है तो हमारे पास इट इज मोर एक्सपोज टू द सबस्ट्रेट, तो फ्री सॉल्यूशन वाली एंजाइम ज्यादा कोलाइड कर सकती है विद द सबस्ट्रेट इन कंपैरिजन टू द इमोबिलाइज्ड एंजाइम। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? बोथ दीज रीजंस, इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हो। दैट एक रीजन हो सकता है द इमोबिलाइज्ड एंजाइम
inert substance covers the active site, thus decreasing contact with substrate. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास क्या कहते हैं, free enzyme can collide more easily with the substrate. Suggest and explain why the percentage of maximum activity of immobilized trypsin at 55 degrees Celsius is higher than the percentage of maximum activity of trypsin free in solution at 55 degrees Celsius. अब हमें 55 डिग्री सेल्सियस की डेटा को कंपेयर करना है। 55 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, एंड हमारी जो फ्री एंजाइम है वो कम परफॉर्म कर रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स, तो जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स होती है ना वो थर्मली स्टेबल होती हैं। ऑन द कॉन्ट्री हमारी जो फ्री एंजाइम्स होती हैं दे आर नॉट थर्मली स्टेबल, वो डीनेचर कर जाती हैं एट हाई टेम्परेचर्स। सो वी वुड से दैट immobilized enzymes are heat stable, or you can say thermal stable, due to which they maintain the shape of active site at high temperatures, whereas the free enzyme gets denatured at high temperatures. ठीक है जी. Now last question. Figure 6.1 shows a plant cell in a stage of mitosis. Some of the structures shown in figure 6.1 contain DNA. Use a line labeled D on figure 6.1 to indicate one of these structures. तो हमारे पास DNA किस में होता है? DNA क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। हमारे पास ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपके पास क्या है? ये आपकी क्रोमोसोम्स हैं। तो आप किसी भी ब्लैक स्ट्रक्चर को लेबल कर सकते हो एज डी। Name the state of mitosis shown in figure 6.1. हमारे पास the sister chromatids are being pulled apart towards the opposite poles of the cell. So this is anaphase. Colchicine is a chemical used by scientists to study mitosis. This chemical inhibits का मतलब होता है stops the organization of the microtubules and prophase of mitosis. तो ये जो हमारे पास केमिकल होता है या माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन होती है या जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको इनहिबिट कर देता है. The cells shown in figure 6.1 had not been treated with colchicine. Explain the evidence in figure 6.1 that shows the cell had not been treated with colchicine. Look at the cell, look at this description, and let me know why this conclusion is correct. Yeah, and what is basically the factor that pulls very good. एक तो ये रीजन हो गया. दूसरा हमारे पास स्पिंडल फॉर्म हुआ है ना. प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में स्पिंडल फॉर्म होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. तो हमारे पास एक तो स्पिंडल प्रेजेंट है, तो ये एविडेंस है कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, प्रोफेज हुआ था. एंड दूसरा हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आर बीइंग पुल्ड अपार्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल. ये जो मूवमेंट होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स की, दैट मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द और द शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. So these are the two reasons that we would mention over here. Spindle is observable in figure 6.1, which means
that prophase took place in which microtubules are organized to form spindle in the cell. The microtubules are contracting. Sorry, the microtubules are contracting, and therefore the cystic chromatids are being pulled apart towards opposite poles, आप लिख सकते हो. Is this clear? Any questions? Okay. With that, we come to the end of this paper. I shall be seeing you guys inshallah tomorrow with a new paper. Take care. Allah Hafiz.